Good morning, students. In the class 11th Commerce in the Accountancy, our running chapter is Accounting Standards, and today we are going to discuss about the basic concept of the accounting standards. And in this class, we will discuss about the concept and the natures of the accounting standards. So first of all, we are going to discuss about the definition of the accounting standards. So what is the definition? Says that the accounting standards as a written statement. Accounting standards क्या है? एक written statement issued from time to time by the institution of the accounting professionals specifying the rules or the practices for drawing the financial statement. तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या है? एज ए रिटन फॉर्म में इट इज डिफाइंड एज ए रिटन स्टेटमेंट, यानी कि जो वेरियस प्रॉब्लम के लिए जो डिफरेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है। अगर आपको कैश फ्लो से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कैश फ्लो का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को आप रेफर करोगे। अगर आपको स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो स्टॉक के वैल्यूएशन की अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को क्रिएट किया गया। अगर आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यू हैव टू टेक द accounting standards related to the depreciation. So where there are the various numbers of the accounting standards has been stated in the written form, because you have to follow whenever you needed it for the accounting standards. You can follow from the written statement. So what is the treatment should be done for this particular type of the problem. So it is defined as a written statement issued from time to time. जो क्या होता है? It is issued from time to time. जब भी नेचर ऑफ बिजनेस या फिर कोई डेवलपमेंट के फेज में या फिर कोई अगर इकोनॉमी की चेंजेस में कोई अगर ऐसे डेवलपमेंट हो तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज नॉट ए रिजिड इन द फॉर्म, दे आर इन द फॉर्म ऑफ द in such a way that can be any time can be changes. So it can be changes from time to time issued by the institution. ये जारी किया था बार-बार जब आपकी जरूरत होती है, issued by the institution of the accounting professional. जो भी accounting professionals है, bodies है, उनके थ्रू ये डेवलप किया जाता है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हो गया। ये बॉडीज क्या होती हैं? इसको क्या करते हैं? जारी करते हैं, बताते हैं कि इसको कैसे एप्लीकेबल इसको करना है, जिसमें क्या लिखे होते हैं? जो रिटन स्टेटमेंट होते हैं स्पेसिफाइंग द रूल्स, जो स्पेसिफाइंग या फिर यूनिफॉर्म रूल होते हैं, जो यूनिफॉर्म रूल्स होते हैं that the rules are that are applicable to all the same nature of the organization in the business industry, in the commerce industry. और उसमें क्या रिटन फॉर्म होता है? रिटन फॉर्म होता है practices for drawing the financial statement. They also tells about how to practices are made in the field of business, in the field of maintaining the books of account, and while the preparing or presenting the financial statements. Financial statement may be our trading account, profit and loss account, balance sheet, and the cash flow, fund flow, or any other statement that are required by the company rule or any other rules of the as per the demand. So after this we will discuss about the nature of the accounting standards. Okay. So students, now we are going to discuss about the nature of accounting standards. What is the nature of accounting standards? We will discuss here. So accounting accounting standards lay down the norms of the accounting policies and practices by the way of code how to deal with the transactions. सो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स है वो क्या करते हैं? ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग। जो नॉर्म्स है उसको अकाउंटिंग को क्या करते हैं? फ्रेमवर्क करते हैं। एक तो इनका नेचर है, ये नेचर ऑफ में इनके इंक्लूडेड है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसी। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है उसको ले डाउन करना होता है। और प्रैक्टिसेस बाय द और ले डाउन में क्या होता है? इनके प्रैक्टिसेस को जो फ्रेमवर्क करते हैं उनमें क्या होता है? उनके नॉर्म को वो ले डाउन करना और क्या करना? उसके प्रैक्टिसेस को फ्रेमवर्क करना बाय वे कोड। जो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक स्पेसिफाइड कोड होता है, उसके कोड के थ्रू क्या करना? प्रैक्टिसेस को फॉलो करवाने के लिए एक कोड को डिफाइन किया गया। हर एक फॉर नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी हाउ टू डील विद द ट्रांजेक्शन कि जो भी अलग अलग डिफरेंट ट्रांजेक्शन है उनके लिए एक अलग अलग कोड स्पेसिफाई किया गया, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं?
वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को डील करने में आसानी होती है उस अकाउंटिंग कोड के थ्रू, ठीक है, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कोड डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। So remove the remove the effect of the diverse accounting policies and the practices. जो diverse accounting policies और practices है वो जो जो इसका जो spread है जो हर जगह यानी कि जो हर तरीके से फैला हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो डाइवर्स इन नेचर जो बिजनेस है उनके डिफरेंट अगर अकाउंटिंग जो प्रैक्टिसेस है अगर वो इस तरीके से अभी भी वो कंडक्ट किए जा रहे हैं तो उसको क्या करना है, रिमूव करना है, रिमूव द डाइवर्स इफेक्ट और द डाइवर्स इफेक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और द पॉलिसीज इन द field of the accounting or in the field of the industry. So prescribe the accounting treatment from the available set of the methods for solving the accounting problem. तो ये लोग क्या करते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको प्रोवाइड करना फ्रॉम द अवेलेबल सेट ऑफ द मेथड्स, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में जो अवेलेबल मेथड्स हैं उसको प्रेस्क्राइब करते हैं जिसके थ्रू वो अडॉप्ट करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर या फिर एनी अकाउंटिंग प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक सेट ऑफ मेथड्स है जिसको फॉलो करके अकाउंटेंट है या फिर जो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं उनको फॉलो करके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के नॉर्म के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना होता है। तो ये क्या करना है, प्रेस्क्राइब करना, क्या प्रेस्क्राइब करना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को प्रेस्क्राइब करना ये इनका ये नेचर है, ये नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। सो दे प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन विच द बेसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर। सो जो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वो एक बेस प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोवाइड किया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है या फिर प्रिपेयर किया जाता है ऑन द बेसिस विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड, यानी कि जो भी यूजर ऑफ द अकाउंटिंग जो यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उस किस बेसिस पे किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया गया है, वो ये जो किस बेसिस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के किस बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाया गया है, ये बेस कौन प्रोवाइड करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। तो जिस इंफॉर्मेशन के बेस पे अकाउंटिंग स्टेटमेंट को बनाया गया है और उसके बेसिस पे जो वेरियस यूजर और जो पार्टीज हैं वो उसको रिलाई करते हैं और उस पर डिपेंड होकर के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के इंफॉर्मेशन को वो गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करना, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन से दे लिमिट द एरियाज विद इन विच द अकाउंटेंट हैज टू फंक्शन। तो ये एरिया ऑफ जो फंक्शन ऑफ अकाउंटेंट का जो एरिया उसको लिमिट कर देते हैं कि आपको इस स्पेसिफाई एरिया में विद इन इस फ्रेमवर्क में आपको एज ए फंक्शन करना है, वर्क करना है, ठीक है, कि दे हैव टू फॉलो ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एज ए लॉ, यानी कि एज ए लॉ ऑल द अकाउंटेंट्स हैज टू फॉलो द रूल्स एंड द रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें ये बताते हैं कि किस तरीके से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना है, किस तरीके से कोई स्पेसिफाई प्रॉब्लम है तो उसको वहाँ से अगर कोई मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस को आप ले करके बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिससे आपका कभी भी ऑडिट में जाए या फिर कभी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से फ्रेम करना है, उसमें कोई प्रॉब्लम ना है। So in the next video, we will discuss about the objective of the accounting standards. Okay.